आइए भाई के साथ हमको अच्छा बताएंगे। आज मैं कुछ डरा हुआ हूँ। I'm a little scared today. मगर पवाटे ने मेरी कंफर्मेशन पर मोहर लगा दी कि यार इतना नहीं घबराया। But Abate has confirmed what I was going to share, so I'm not that मैं scared. प्रचार करने जा रहा था, उसको भाई ने कुछ करा तो शेयर किया तो मुझे हिम्मत Our brother, when he shared what he shared, confirmed what I was going to share, so that gave me courage. फिर भी डरा हुआ हूँ। Yet I'm scared. आप लोगों के लिए खुशी की खबर भी है। And there is a good news for all of you. मैं टॉप गियर में नहीं हूँ, जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय लेगा। I'm not in top gear, and I'll try to go out as soon as possible. So I won't take much of your time. वैसे प्रचारक का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए ना। But you should never trust what the preacher is saying. When he says like that. 10 मिनट कहेगा और आधा घंटा गीत जाएगा। तो आज सारे संसार में मसीह लोग प्रभु के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। हेलो भाई, चानी भाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया भाई। Yeah. भाई कंटिन्यू भाई कंटिन्यू। हाँ जी। आज सारे संसार में प्रभु के जी उठने का दिन मनाया जा रहा है। Today, all over the world, the day of the resurrection of the Lord Jesus is being celebrated. हाँ, और आइए हम भी उसी बात पर विचार करें। Shall we also meditate on that thing? और यूहन्ना 20:1-9 तक पढ़ दीजिएगा। Shall we read from John 20:1-9? सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया। तब पतरस और वे दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़े थे तो दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो अभी वे भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वे अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone has been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved and said to them, They have taken away the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him. Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he stooping down, looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw that linen clothes were lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with linen cloths, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came into the tomb first went in also, and he saw and believed, for as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम Come, let us pray. आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. कोई दूसरा सहारा नहीं है। Lord, we have no other help. और कर्म भी नहीं इस लायक कि आपके आगे हाथ फैला सकें। And we don't even have works that we can spread our hands in front of you. अगर आपका लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। But your blood cleanses us from all sin. और प्रभु जी आपकी जी उठने वाली सामर्थ हमारे शरीरों में डालें। Lord, put your power of resurrection in our mortal body. और अपने लोगों को एक नए दर्शन के साथ। And Lord, take your people forward with a new vision. इसलिए मुझे मेरे भाई को पवित्र करें कि उसके पीछे sanctify me and my brother in your blood, hide us behind your cross. और प्रभु
आपके लोग मनुष्य का टैलेंट और प्रभु ज्ञान न देखने पाए, बल्कि आपको और आपकी महिमा देखने पाए। People may not be able to see man's talent or man's understanding, wisdom, but your knowledge they may be able to see. तो उसकी शक्ति द्वारा शैतान को निकम्मा कर। It binds Satan by the power of the cross. यिर्मयाह 1:9-48:6 निर्गमन 4:12। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल आ, Holy Spirit, take full control. अंधकार की शक्ति ये सुना, Bind the powers of Satan in Jesus' name. हमारी प्रार्थना की लाज रखें। Lord, honor our feeble prayer. जी उठने वाली सामर्थ को ले, Pour out the power of resurrection in our bodies. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. हैं। Amen. ये जी उठने का दिन था, मैं जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि समय का है। और This is the day of resurrection. I'll quickly tell you this. मरियम मगदलिनी और पहले पद में मरियम मगदलिनी और कुछ औरतें आई वहां पर। In the और first verse, Mary Magdalene and some others came to the cross, हाँ, और उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ था and कब्र they पे। saw that the clothes had been removed from the grave, और लाश नहीं थी वहां पर। and the dead body was not there. और वो घबराई एकदम, क्या हुआ, And they were really scared. What had happened? दौड़ के गई, वो पतरस और यूहन्ना को बताया। अभी They बिल्कुल came- अंधेरा ही था, अभी बिल्कुल अंधेरा They ही came running to and told John and Peter. It was still dark. था। और वो भी दौड़ कर आए He also came running, और वहां देखा उन्होंने, and he saw वहां देखा कि कपड़े वैसे पड़े जैसे आदमी पहनता, वैसे कपड़े पड़े। he saw that the clothes are lying just as a man would वो रैप keep his करके, clothes, मतलब लपेट के बांधे जाते, लपेट as if the man Grave was clothes. still wearing the grave clothes. They were lying like that. हाँ, वो कपड़े बिल्कुल वैसे थे, उसमें से जिस्म निकल गया था। The clothes were exactly lying like that, but the body had gone out of it. हाँ, खैर वो ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, सुबह हो जाएगी और वो डरे हुए हैं, यहूदी जो है वो उसको भी लिंचिंग कर देंगे, अब बहुत उसके फिराक में है, तो वो रुकना उनके लिए बड़े खतरे की बात। अगर आप कैमरा खोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा। जो They could not wait request that है। long. They could प्लीज not रिक्वेस्ट wait. है, अगर आप कैमरा खोल सकते हैं तो अच्छा लगेगा, बोलते हुए लगेगा किसी से बात तो कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत थैंक यू। हम तो उन्हें डर था यार, नहीं हमें अगर दिन निकल गया तो हमें भी दर्द हुए, तो लाश खोजने की कोशिश नहीं की, वो भागे भाई, घर भागे भाई। They also had the fear that if they wait till the morning, they can also be lynched by the Jews. So after seeing that, they ran back home. हाँ, क्योंकि वो डरे हुए थे बहुत ज्यादा, because they were really afraid. हाँ। अब देखिए, सब चले गए, मरियम मगदलिनी वहीं पर रुकी रही, रोती रही। मरियम मगदलिनी की एक स्त्री थी, मगदलिनी एक जगह है, उसका नाम है, और कहा जाता है 7 आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं, ये बाइबल में लिखा 7 आत्माएं थी, मगर लोग कहते हैं ये वैश्या थी, मगर कहीं नहीं लिखा कि ये वैश्या थी। Mary Magdalene was from a place called Magdalene, and they say the Bible tells us that she had 7 evil spirits which the Lord had taken out. Some people say that she was a prostitute, but it's nowhere recorded in the Bible like that. हाँ, और अब देखते हैं कि वो चली गई। She went away. देखिए, प्रभु जब पत्थर हटने से पहले ही निकल चुका था उसको। The Lord had already gone out of the tomb before the removing of the stone. हाँ, पत्थर किस लिए हटाया, किन के लिए हटाया? Why was the stone removed? हाँ, ताकि तुम इस बात को देखो कि कब्र खाली है, That you may see the tomb is empty, और तुम इस बात पर विश्वास करो, and you may believe. अब कपड़ों में ऐसे कैसे निकल सकता कोई आदमी? How can anyone come out of the clothes just like that? हाँ, और पत्थर बाद में हटाया, सिर्फ उन्हें देखने के लिए। प्रभु को पत्थर की कोई रुकावट नहीं थी, तो The वैसे निकल stone गया, was कपड़ों में से removed. निकल गया, पत्थर में से निकल गया, दरवाजे में से निकल गया। अब उसके शरीर में क्रूस के काम के बाद जी उठने वाली सामर्थ। Now the stone was removed just to show them. He went out of the clothes, the door, the stone. Now there was a power of resurrection working in his body. हाँ, मगर ये रो रही थी। But हाँ, Mary Magdalene was weeping and weeping. हाँ, और
लाश कहाँ गई मेरे प्रभु की? Where has the body of my Lord gone? हाँ, रोते रोते अब इसका जो साफ नहीं देख पा रही थी, आंसू Because of her tears, she could not see clearly because there were tears in her eyes. हाँ, फिर इसने देखा मतलब कि जहाँ कपड़े पड़े हैं, Then she saw where there were the clothes. जहाँ पर उसके ऐसे एक सर के कपड़े रखे, एक पैर के कपड़े रखे. One are the clothes which were worn on his head, the grave clothes, and the grave clothes for his feet. हाँ, और वहां पर एक स्वर्गदूत और दूसरी तरफ स्वर्गदूत पैर की तरफ है, उसकी तरफ ऐसे अपने हाथ फैलाए हुए. And on पर both फैलाए. sides there were angels sitting as if spreading their wings on the grave ये clothes. मर्सी सीट है. That picture that you see, this is the mercy seat. हाँ, और दया का ढक्कन या दया का सिंहासन. हाँ, क्षमा का अनुग्रह का ढक्कन. The mercy seat. हाँ, तो एक उसके स्वर्गदूत इधर और एक उधर बैठा. So there is one cherub on one side and the other cherub on the other side. One angel on one side, the other angel on the other. मतलब जहाँ उसके कपड़े रखे थे, उसकी लाश के ये दर्शन दिया कि एक करूब इस तरफ और दूसरा करूब उसके पैर की तरफ. So where the grave clothes were lying, the vision was shown to Mary Magdalene that there was one cherub on one side and it was a cherub on the other side. इतनी भावुक थी, वो नहीं समझ पाई ना इन बातों को, प्रभु क्या दिखाना चाह रहा. But she was so emotional, she couldn't understand the Lord was wanting to show her. हाँ, जब पतरस और यूहन्ना आए थे तब उन्होंने नहीं देखा, उन्हें दिखाई नहीं दिया. When Peter and John came, they could not see. They could not see it. इसे दिया दर्शन. But she saw it. हाँ, ये नहीं समझी कि ये वही दया का सागर है, ये वही अनुग्रह का सिंहासन है, ये यही है जहाँ पर सारी क्षमा मिलती है. वो नहीं पहचानी यही परमेश्वर है. She did not realize this is God, this is that throne of grace, this is where he is. जो पंख फैलाए हुए कुर्बों के बीच में रहता है. Who dwelleth between the cherubim. हाँ, ये वही दया का सिंहासन है. This is the same throne of mercy. मगर वो नहीं समझ पाए. She didn't understand. हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नहीं गई, रोती. She kept on weeping. She didn't go. मगर एक बात मैंने पूरी बाइबल में एक बात देखी है भाई, मतलब one thing I've seen throughout the Bible. एक भी औरत प्रभु को छोड़कर नहीं भागी. Not even one woman ever ran away from the Lord up to the cross. उसके दफनाने तक वहां साथ रही. Up to his burial, they stayed there. उसके जी उठने तक साथ रही. Stayed there till his resurrection. एक औरत नहीं भागी. Not one woman ran away from कमजोर him. पात्र एक नहीं भागा. Not even one weak vessel ran away. और जितने ही छाती ठोकते थे दुम दबा के कहाँ दिखाई दे रहे. And all these people who used to beat, they used to show their big chest, they all ran away. हाँ, क्या कहते थे ये? What did they say? जान दे देंगे प्रभु, तू क्या बात करता है? What are you saying, Lord? We'll give our life for you. है, मगर औरतों में से एक नहीं भागी. But not one woman ran away. हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है. It's a very strange thing. ये बुरी तरह रो रही थी. She was weeping terribly. जो दर्शन भी नहीं देख पाई जो प्रभु Could दिखाना not even see the vision the Lord wanted to show her. हाँ, और फिर यीशु ने उससे बात. Then the Lord Jesus spoke to her. ये इतनी भावुक थी, यीशु को भी नहीं पहचान सकी. She was so emotional, she could not recognize the Lord. हाँ, प्रभु ने कहा तुम मुर्दों को जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ. The Lord said, why do you seek the living among the dead? हाँ, क्यों ढूंढती है. Why do you seek the living among the dead? हाँ. और कितने विश्वासी हैं जो मुर्दा मसीह के साथ जीते हैं आज. There are so many believers who are living with the dead Christ. हाँ, मगर मरियम चुनी हुई थी, भेड़ थी, इसलिए शक्ल को नहीं पहचान सकी, मगर आवाज पहचान गई. ये वरदान. Mary was chosen. She could not recognize the Lord, but she recognized his voice. हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ है. Because the Lord said, my sheep hear my voice. Not his face, but his voice. हाँ, और अब प्रभु प्रकट हुआ जिस टाइम, when the Lord was revealed,
जब इसने जी उठे हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा When और she इसके saw अंदर the उस resurrected दर्शन Lord से, Jesus Christ, उसके दर्शन से इसके अंदर जी उठने वाली सामर्थ आई, and from his revelation, she had the power of resurrection in herself. हाँ, जब वचन के दर्शन से वचन जब पढ़ते तो हमें एक सामर्थ मिलती है। When we read the word of God, we are empowered. हाँ, प्रभु यीशु मसीह वचन है। Lord Jesus is the word himself. जब जी उठा हुआ परमेश्वर के दर्शन मिले से When she got the vision of the resurrected Lord, कहानी बदल गई। the whole story changed. हाँ, आंसू आनंद में बदल गए। The tears turned to joy. हाँ, और भाई जी एकदम ये सामर्थ पाकर दौड़ी, फिर दौड़ी। And with that power, she ran. हाँ, ये दर्शन मिलते ही एकदम आंसू आनंद में बदल गए, एक नई सामर्थ आ गई। The instant she got this vision, tears turned to joy. She got a new power. हमें नहीं मालूम लहू कैसे काम करता है, मगर ये विश्वास है काम करता है। We don't know how the blood works, but the blood works. We know that. हमें नहीं मालूम जी उठने की सामर्थ कैसे काम करती है, मगर वो सामर्थ्य है, सामर्थ देती है। We don't know how the power of resurrection works, but that is powerful and it gives us, it empowers us. हाँ, पौल भी प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरी जी उठने की सामर्थ को जानूं। Paul says that I may know the power of his resurrection. हाँ, वो मृत्युंजय लिख दिया है, मगर वो पावर वही है, जी उठने की It सामर्थ। is written Mrityunjay, but the real meaning is resurrection. हाँ, अब 20 और 19 में देखें चेले कहाँ खड़े हैं। In 20 and 19, where are the disciples standing? हाँ, डर के मारे दरवाजे बंद है और अंदर 2019 है, दरवाजे बंद करके अंदर छुपे बैठे। In John 20:19, they are hiding behind closed doors. हाँ, ये दरवाजा अजीब दरवाजा है भाई साहब। This door is a strange door. बंद दरवाजों में भी दरवाजे खोल देता है, खोल देता है। Even in closed doors, the Lord opens doors. हाँ, जहाँ कोई दरवाजा नहीं है वहां दरवाजा निकाल देता है। Where there is no door, the Lord opens a door. आप भी बहुत मुश्किलों में निकले हो, जहाँ कोई दरवाजा नहीं दिख रहा हो, दरवाजा You आ may गया। have also gone through difficult circumstances, but a door opened. समुद्र में भी निकाल देता है जी। Even opens a door in the seas. पानी की बिल्कुल तह में, मछली के पेट में दरवाजा निकाल देता है। वो The दरवाजा Lord ऐसा है। opens a door in the very bottom of the sea, in the belly of a fish. The Lord opens a door. हाँ, जहाँ दरवाजा वहां पहुंची। Where there is no door, the Lord reached there. जब इन्होंने दर्शन देखा, ये बदल गए। When they saw this vision, they changed. इनकी कहानी बदल गई, Their story changed. इनका डर बल में बदल गया। Their fear turned into victory. हाँ, into इनके power. अंदर जीतने वाली सामर्थ आ गई। And they got the power of resurrection in themselves. एकदम पलट जाता, एकदम कैसे। Immediately everything changes. मगर उस दिन जो पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन थोमा संगति से गुल था। But on the first day of the week, Thomas was not there in the fellowship. तो संगति में हमें दर्शन मिलते हैं और ये जीतने वाली सामर्थ्य होती है उनमें, और ये दर्शन हमारा जीवन बदलते हैं। In the fellowship, we get the visions of the Lord, this vision of the Lord, power of resurrection that changes our lives. आप में से बहुतों का अनुभव होगा कि जब आप संगति में आते हैं तो वचन के दर्शन आपके जीवन को बदलते हैं, बदला होगा। Many of you have this amazing experience that when you come to fellowship, God transforms your life. हाँ, ये नहीं था, थोमा नहीं था। Thomas was not there. अगले संडे फिर प्रभु आया, थोमा से मिलने आया। Next day, the Lord came again to meet Thomas. हाँ, और यीशु के दर्शन पाते ही As soon as he got the visions of the Lord, वो कह रहा जब मैं विश्वास नहीं करूंगा, he says, I will not believe. वो ये नहीं विश्वास किया कि यीशु है, He didn't believe that this is Jesus, क्योंकि ये परमेश्वर है। but he said, this is the Lord. हाँ, ये जी उठने वाली सामर्थ उसके अंदर दी। This is God. नहीं, दिस इज जी उठने वाली सामर्थ मिली, This power of resurrection he got. जिसने इसके विश्वास को पहला विश्वास बना दिया, जिसने यीशु को परमेश्वर कह के आराधना की। And that transformed the faith of Thomas. The first time a man worshipped the Lord Jesus as God. देखिए, संगति छूटने से कुछ तो छूटता ही। When you leave fellowship, you do lose something. बहुत कुछ छूट जाता है। You lose much. हाँ, बहुत कुछ छूट जाता है। You lose much. संगति की कीमत वही जानता है जिसको मालूम है यहाँ पर दर्शन
बरसते हैं झूठने की He सामर्थ। only knows the value of fellowship. He knows that we get visions here and the power of resurrection works. ये वो चेले थे जिन्होंने विधवा के बेटे को जीवित होते देखा, इन्होंने आराधनालय के सरदार की बेटी को जिंदा होते देखा, इन्होंने लाजर को जो 3 दिन से मरा हुआ था उसे जिंदा होता देखा। They are the same disciples who saw the widow's son come alive, who saw Jairus' daughter come alive, who saw Lazarus come alive. और साल भर से प्रभु समझा रहा था इन्हें बार बार कि मैं मरूंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जीऊंगा। And for a year, the Lord had been teaching them, I will die, but I will rise again. मगर समझने की सामर्थ नहीं थी। But they did not have the power to understand. जब तक प्रभु सामर्थ ना दे कोई नहीं समझ सकता। आंख Until- रखते हुए अंधे हो जाओगे। Until the Lord gives you the understanding, you cannot understand. Having eyes, you'll not be able to see, you'll be blind. हाँ, अब ये जो लोग थे, चेले जो थे, प्रभु साथ था इनके, मगर इनके अंदर जी उठने वाली सामर्थ नहीं थी। प्रभु के साथ चलते हुए डरते थे। When they were with the Lord, the disciples were with the Lord, he was with them, but they were afraid to walk with him. मरकुस 10:32 पढ़िएगा। If you read Mark 10:32, Mark chapter 10 and verse 32. हाँ, मरकुस 10:32 जी भाई। 25 नहीं भाई, 32 32. वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वे फिर उन 12 को लेकर उनसे वह बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। बस मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रभु के पीछे चलते थे मगर डर के साथ चलते थे, क्योंकि They इन्होंने, walked behind the Lord, but they walked with fear. इनके पास वो सामर्थ्य नहीं थी, They पाई didn't नहीं। have that power हाँ, क्योंकि अभी प्रभु उस सामर्थ्य में गया नहीं था। because the Lord had not yet gone into that power. जैसे इन्होंने प्रभु को देखा और सामर्थ पा गए, As soon as they saw the risen Lord, they were in power. जो डरे हुए बंद कमरों में बैठे थे, Those who were afraid, sitting in closed doors. अब क्या पलटावा आया भाई, देखिए। Now see the change that came. हाँ, ऐसे डरपोकों की हालत देखिए क्या बदल दी। See, जी उठने वाली सामर्थ आते ही ये क्या हो गया। See पढ़िएगा the प्रेरितों fear. का काम 2:23 और 24 पढ़िए। Acts 2:23-24. What happened to these disciples as soon as they got the power of resurrection? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, तो तुमने मार डाला। He said, you have crucified and put him to death. और फिर आगे कहता हूँ, प्रभु ने उसे जी उठ। And he says, whom God raised up. हाँ, प्रभु ने उसे उठा दिया। God raised him up. तुमने मार डाला। You उनके killed him. उंगली करके कह रहा। He is pointing his finger and saying, you put him to death. ये वो आदमी जो बंद दरवाजे में थे बैठे हुए। These were the same people who were hiding behind closed doors. हाँ, प्रेरितों का 5:30 में क्या कहता है? What does he say in Acts of the Apostles 5:30? Acts 5:30. हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। तुमने मार डाला। बार-बार ये पूरे प्रेरितों का। He is saying again and again, the God of the Father is whom you murdered. जहां पौल प्रचार करता है वहां कहता है जी उठना, वो क्रूस पर मारा गया और जी उठा। And wherever Paul preaches, he died on the cross and he rose again. हाँ, हमारा जो विश्वास है उसमें विश्वास का जो खंबा है वो उसकी जी उठने की सामर्थ्य है। The faith that we have, the pillar of that faith is the power of resurrection. हमारा विश्वास उसके जी उठने पे टिका हुआ। Our faith is standing on his rising again. हाँ, जितने धर्म है उनके धर्म गुरु मौत ने मार दी। All the religions, their religious heads were killed, but their lives ended by death. हाँ, एक इकलौता है जो मरकर जी उठा। There's only one who rose again from the dead. हाँ, क्यों? Why? क्योंकि वचन कहता है। Because that is what the word says. वचन सिद्ध है, सत्य है। Because the word is perfect and the word is true. उसमें एक भी असत्य नहीं है। There is not one lie in it. मगर बड़ी अजीब बात है भाई। What a strange thing. वचन में गलती नहीं है, लिखने वालों में बहुत गलती है जी। There is no fault in the word. There are many faults in the writers who wrote the word. हाँ, बताओ कौन से में गलती नहीं थी? दाऊद ने Tell लिखा, me, even one who did not have faults in him, David wrote, he had faults in ने him. लिखी 5 किताबें, क्या उसके अंदर गलती नहीं थी? Moses wrote 5 books. Didn't he have faults in him? तो ये गलत आदमी सही बात कैसे लिख सकता?
So how can a wrong person write the right thing? सवाल उठता है ना. The question arises in our heart. हाँ, मगर इसलिए लिखा, वो लिखने वाले नहीं थे, वो तो टाइपराइटर थे, लिख तो But कोई the और. truth is they were not the writers, they were only the typewriters. Somebody else was typing his word on them. प्रियो, अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, If Christ is not risen from the dead, तो यीशु मसीह झूठा है. then the Lord Jesus is a liar. अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं झूठा, If the Lord Jesus is not risen from the dead, हाँ, वो धोखेबाज है. then he is a liar. हाँ, अगर यीशु मसीह मर के नहीं जी उठा, तो वो पापी है और इसी मट्टी में कहीं ना कहीं दफन है. The Lord Jesus, if he is not risen from the dead, then he is a sinner and he is buried in the dust somewhere. अगर मसीह नहीं जी उठा, तो मेरे सारे जीवन का प्रचार झूठ है. If Christ is not risen, then all my preaching is in vain. हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ, खैर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ. I often see, I'm not praising myself. हम संपर्क लिखते हैं, बहुत लोग बड़ी तारीफ करते हैं, अब भी पकड़े भाई बहुत बढ़िया ये, और हम When- बात करते हैं तो हम बड़ा सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी आदमी सोचते हैं. When we write Sampark, people are very impressed by it and they think that we are very knowledgeable. जब हम आखिर में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब वो मुस्कुराने लगते हैं. But when we write and then the Lord Jesus died and he was buried and he rose again, then they start smiling slightly. वो मुस्कुरा के पता क्या कहते हैं? You know what they say while they smile? क्या बेवकूफ आदमी है. What foolishness is this? You're a अभी बड़ा foolish man. प्रभावित हुआ था हमसे, बड़ा प्रभावित हुआ. Till now he was very influenced. और जैसे हमने उसके मरने और जी उठने की बात की, यार क्या बेवकूफ है. But the moment we talked about his burial and resurrection, they say, what foolishness is this? एथेंस में प्रचार कर रहा था पॉल, When 17 Paul अध्याय was में. preaching in Athens in Acts chapter 17, वो हर बार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात को बोलता है. and every time he talks about the Lord's resurrection, हाँ, वो एथेंस में बोल रहा था, तब तक तो Preaching in सुनते Athens. रहे, हर अब सुनते रहे. और जहां उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, तो आप 31-32 पढ़ लीजिए, 17, फिर उसका मजाक बनाने लगे, क्या बेवकूफ आदमी. they were very interested in hearing him. But the moment he talked about the Lord's resurrection, verse 31 and 32, you can read it, they started making fun of him. What a fool! प्रेरितों का काम 26-23-24 में फेस्तुस ने उसकी बात सुनी और कहा, यार क्या ज्ञान है इसके पास. And in Acts 20, chapter 26, Festus heard his words and said, what 23, knowledge this man, 24, 23, 24, what knowledge this man has. हाँ, फिर जैसे ही उसने कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा, But the moment Paul said that he rose again from the dead, उनका ज्ञान तो बहुत है मगर पागल हो गया जो ऐसी बात. but Festus says, Paul, what knowledge has made you mad? और जो आदमी सुसमाचार को में प्रभु के मारे जाने और गाड़े जाने को और जी उठने को छिपाता है, वो सुसमाचार की हत्या कर देता है. The man who hides the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus in the gospel, he kills the gospel itself. हाँ, संसार के सामने बेवकूफी की बात है. And that is foolishness in the eyes of the world. प्रभु का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना ही सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन को बदलता है. But the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus is the power of the Lord that transforms the lives of देखा people. कैसे चेलों में परिवर्तन आया, कैसे लोग. How change came in the lives of the disciples. हाँ, जो भी सुसमाचार दे और इस बात को छिपाए कि मेरा प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जैसे अबाटे कह रहा था, यार पीएचडी की आदमी, क्या बेवकूफी की बात है. And anyone who preaches the gospel but hides the truth of his death, burial, and resurrection, as Abate was saying, that man thought that he is such a fool after doing a PhD. हाँ, क्योंकि उसकी क्रूस की गाथा उनके लिए बेवकूफी की बात. Because the preaching of the cross is to them foolishness. हाँ, मगर इस बेवकूफी में वो सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन को बदलती है. But this foolishness has that power that transforms the lives of people. आप लहू की तो सामर्थ्य मांगते हैं, जी उठने की सामर्थ्य के लिए चिल्लाते हैं. You claim the power of the blood, but you claim the power of his resurrection. हाँ, जो उसके जी उठने की बात से लजाएगा, प्रभु उसे अपना कहने से लजाएगा. The person who's ashamed of the power of who's ashamed of the resurrection of the Lord Jesus, the Lord is ashamed to call him his own. क्रूस पर उसने इतनी शर्मनाक हालत सही है अपनी, है, और हम उस बात को छुपा जाते हैं. The Lord suffered so much shame on the cross and we hide the truth. हाँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेट लिखा, वो नेकेड कर दिया, नंगा कर दिया.
In English, it is written that he was made naked on the cross. हाँ, क्यों नहीं बताते? Why don't we tell that? हमें शर्म आती ना। Because we are ashamed. हाँ प्रियो, वो क्रूस पर जो डाकू बचा था ना, उसने भी विश्वास किया कि ये जो मर रहा है ये फिर जी उठेगा। ये पवित्र आत्मा ने उसके दिल में बसा था। The robber dying on the cross, even he knew the Lord would rise again. This is the Holy Spirit that told him that. हाँ, क्योंकि उसका विश्वास था ये जी उठेगा, इसका राज्य आएगा। Because he had this faith that he will rise again, his kingdom will come. हाँ, ये जी उठने की सामर्थ जो है, ये बहुत बड़ी सामर्थ है क्रूस की सामर्थ। This power of resurrection is an enormous power. लोग सब कुछ बताते हैं, पाप से उद्धार बताएंगे, क्रूस को नहीं बताएंगे। People tell all about the forgiveness of sins, deliverance of sins, but they don't tell about the Lord Jesus dying and rising क्योंकि again. उससे शर्म आती है ना। Because that makes us ashamed. यार तू तो साइंस पढ़, वैज्ञानिक पढ़ा हुआ है, क्या बात करता है? You have read science, but you are talking such foolishness. हाँ, वो प्रियो, इस शर्म से बाहर आना है। You have to come out of this shame. हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा इधर को जा रहा हूँ, मगर इसी बात पर हूँ, मगर समझाने के लिए। I am digressing a bit, but I am on the same topic to make you understand. पहले हम परमेश्वर को एक मानते हैं, एक ही है। God is one. हाँ, मगर हम उसकी अब त्रिएकता को मानते हैं। But we now believe in His Trinity. हाँ, वो पिता, परमेश्वर और पुत्र है। पिता He is परमेश्वर, God the Father, God the Son. यीशु मसीह। He is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. हम हमारे दर्शन में बात फर्क आई। Now there is a change in our vision. अब हमने अपने आप को भी देखना फर्क कर दिया। And we started looking ourselves differently. फिर हम अपने आप में भी त्रिएकता देख पाए। And we see a Trinity within ourselves. हाँ, कि हमारे अंदर भी प्राण है, आत्मा है और देह है, ये तीन We चीजें। also have body, soul, and spirit. प्रभु करे मैं ये बात समझा सकूं और आप May the Lord have mercy that I may be able to explain this and you may understand. हाँ, मुझे डर है कि मैं समझा पाऊंगा या नहीं समझा। I am afraid that I will be able to explain it to you or not. हाँ, देखिए, पहले जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, तो मेरे प्राण, आत्मा और देह पूरी तरह गंदगी से भरे थे और मेरा विवेक मरा हुआ था, वो कुछ देख। When I was not saved, my body, soul, and spirit were completely immersed in filth, then my conscience was dead. हाँ, जिस दिन मेरा पापों से क्षमा मांगी और क्रूस पर काम पर विश्वास किया, क्या हुआ? The day I received forgiveness of sins and I believed in the work of the cross, तो मेरे आत्मा मेरे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। please understand what I am saying. हाँ, मेरे आत्मा के पहले पाप से और जो मैं अपने जीवन के आखिरी पाप तक करूंगा, वो सब माफ। All the sins within my spirit from the beginning that I have done till the end of my life, all are forgiven. आत्मा की बात कर रहा हूँ। I am talking about the spirit. हाँ, अब उस पर वो लहू लगा है जिसे पाप छू नहीं सकता। Now that blood has been applied on it, that sin cannot touch. जिस समय मरूंगा उस समय मैं स्वर्ग जाऊंगा। The day I die, I'll instantly go to heaven. हाँ, देखिए मेरी आत्मा, अब देखिए शरीर अलग है, शरीर को मत सोचिए। जब वो मान लीजिए कि मर गया, कोई आदमी लाश पड़ी है। But the body is separate. Now, if a man has died, his body is lying. मैं अपने आप को अच्छा कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरी लाश पड़ी। Suppose my body is lying. तो आप कहेंगे भाई वेस्ली भाई अच्छा था, बेचारा चला गया। Then you will say, Brother Wesley was a good man, he's gone. क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ, चला कहाँ गया? But his body is he's lying there. Where is he gone? चला गया। No, but he's gone. क्योंकि ये तो पड़ा यार। But his body is here. His body here, covered with this grave clothes. मैं था वो चला गया। But I am gone. आप कोई भी हर एक आदमी कहेगा भाई वो चला गया। अच्छा, everybody will say he's gone. कोई नहीं कहेगा ये पड़ा था। Nobody will say he's lying here. मेरे अंदर मेरा मैं कुछ अलग चीज है, अलग चीज। So the I within me is something different. हाँ, अब देखिए प्रभु क्या बात कहता, जरा यहाँ गड़बड़ा मत जाना आप। Now hear this very carefully, but the Lord says don't get confused. मैंने कहा पहले दिन से और मैं जो आखिरी दिन तक पाप करूं, फिर मेरी आत्मा को पाप नहीं छू सकेगी। From the first till the last day, all the sin that I'll do, now sin will not be able to touch my spirit. हाँ, अगर कर लिया और अचानक मैं मर जाता हूँ, तो स्वर्ग मुझे ग्रहण नहीं करेगा। If I die, can you repeat that again?
अगर कोई पाप मेरे साथ होगा मेरी आत्मा में, तो मेरी आत्मा को प्रभु ग्रहण नहीं करने का। If there is any sin in my spirit and I die, then the Lord cannot receive me in heaven. हाँ, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। He will not accept it. इसलिए उसने पहले पाप से और जो मेरे जीवन का आखिरी पाप होगा उस तक सब मेरी आत्मा के पाप होगा। Therefore, all my sins within my spirit from the beginning to the end, all are forgiven. अब उस आत्मा को पाप नहीं छू सकता। Now the sin cannot touch the spirit. अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक पद पढ़ रहा हूँ, गड़बड़ा मत जाना। Now पहला read यूहन्ना very 3:9, carefully. पहला Please यूहन्ना read 3:9। 1 John 3:9. हाँ, पहला यूहन्ना 3:9। जी भाई, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Whoever has been, please read. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. ये क्या? अरे पाप हम सब करते रोज होता है। But we all sin. वो तो कह रहा पाप कर ही नहीं सकता। He said he does not, he cannot sin. हाँ, उसकी आत्मा नहीं कर सकती पाप और कर नहीं सकता, मगर मेरी देह को कोई पाप करा सकता है। His spirit cannot sin, but my body can be compelled to sin. हाँ, वो कमजोर है मेरी देह। That body is weak. हाँ, और शरीर कमजोर होने के कारण शैतान मेरे या स्वभाव मुझसे पाप करा सकता है। And because the flesh is weak, then sin can make me sin. इसलिए मेरी आत्मा कभी पाप करके खुश नहीं होती। My spirit is never happy when I sin. हाँ, वो कहते तू क्या कर रहा है, क्या किया है? What it वो says, मेरी what are देह you करती doing, है, what have देह you करती है। done? But my body sins, my flesh sins. हाँ, देखिए आप क्या बात देखिए, शरीर कमजोर है। Body, the flesh is weak. रोमियो 7 और 9 में लिखा है, मेरी कमजोर शरीर में पाप बार बार जी उठता है, उसमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य है पाप। In Romans 7, it says that sin revives in me again. 7:9, Romans 7:9, sin has revived in me again and again. It has that resurrection in it. हाँ, वो कहता है पाप मुझ में जीता है। He says sin lives in me. हाँ, ये लिखा भाई, पाप जीता है मुझ में। उतना ही इतना पढ़ना बस। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञाएं तो पाप जीत गया और मैं मर गया। नहीं, नीचे लिखा ना 9 में। हाँ हाँ, आगे लिखा है पाप मुझ में जीता है। 17 पद। 17, हाँ 17 पद जी। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ना, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत आपको आया। Sin lives in me. वो कह रहा है पाप मुझ में जीता है। हाँ भाई, इसी में है, परंतु जब आज्ञा है तो पाप जीत गया और मैं मर गया। कौन सा पद पढ़ा आपने? Verse 9, sin revived and I died. 9 पद में। हाँ भाई, आपका 9 पद में, एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं गड़बड़ा गया क्या? हाँ, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है और शरीर दशा में नहीं आत्मिक दशा में हूँ, और यदि मसीह की आत्मा मुझ में ना भाई 17 में, 7 में, एक मिनट 17 9 में आखिर में लिखा, मेरे अनुवाद में लिखा है, तो व्यवस्था के बिना पाप जीता, परंतु अब आज्ञा पाई तो पाप जी गया। Sin revived. हाँ, पाप फिर से जी जाता है। Sin revives again. हाँ, और मेरी देह में पाप जीता है। Sin revived, it revives in my body. हाँ, और वो फिर क्या कहता है? And 9 में, then what does he 17 में say? क्या कहता है? What does he say in verse 17? तो ऐसे दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में, हाँ पढ़िए भाई। As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. हाँ, जो मेरी देह में पाप है वो पाप कर। Sin that lives in me does that sin. हाँ, 20 में कहता है वो करने वाला, 20 में पढ़ दीजिए 20। Please read verse 20. हाँ जी भाई, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है।
हाँ Now, if I do it, I do not do what I do not want to do. It is no longer who do it, but it is sin living in me that does it. हाँ, मेरे शरीर के स्वभाव में पाप बसा हुआ है. There is sin dwelling in my flesh. जब वो प्रबल हो जाता है तो मेरा शरीर उसके कंट्रोल में आ जाता है. When that becomes victorious, my flesh comes within its power. और विजय पाना, और उसकी बात को हम जरा सा देखेंगे थोड़ा आगे. We'll see a little later about getting victory over that. अच्छा, जो देह में पाप करते हैं उसको देह में ही भोगना पड़ेगा, ताड़ना उसकी भोगना. And the sin that you do in the flesh, you will have to pay the price of it in the flesh. जो हम देह में बोएंगे पाप, वो देह में काटेंगे भी. The sin that we sow in the flesh, we will reap in the flesh. हाँ, लूका 12 और 47 में कहता है Luke 12 and 47, he says, कि जानबूझकर हम जानते हैं और फिर पाप करते हैं, हमारी ज्यादा ताड़ना हो. if we sin knowingly, then we will be beaten with more stripes. हाँ, अब दो बातें मैं आपको इसके बाद उसकी पॉजिटिव बताऊंगा, अभी नेगेटिव देख रहे हैं. We are looking at the negative, हम नकारात्मक बात को देख रहे हैं, फिर सकारात्मक को देख, then we see the positive. हाँ, तो वो ताड़ना पड़ेगी, हमारे शरीर पे पड़ेगी, उसके That chastening will come on our body. वो आत्मा को अलग, मतलब आप ध्यान कीजिएगा उस बात. Don't link it with the spirit. इसलिए प्रभु कहता है, रोमियो में भी कहता है उसमें 2 में, कि तुम्हारे कारण मेरे नाम की बदनामी होती. That is why the Lord says in Romans 2, my name is blasphemed because of you. मूसा अपने गीत में लिखता है, यार ये मेरे पुत्र नहीं, ये मेरा कलंक है. Moses writes in his song, these are not my children, they are the black marks on me. 2:24 में कहता है वो कि भाई तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा हो. Romans 2:24, the Lord says the name of God is blasphemed because of you. बहुत शर्मनाक हालत उठानी पड़ती है प्रभु को मेरे कारण. The Lord has to suffer a lot of shame because of it. मगर कुछ लोगों के जीवन पर घमंड करता है. But the Lord is proud about some people's lives. परमेश्वर घमंड करता है. The Lord is proud. तो बुला के कह रहा है, शैतान इधर आ, मेरा बेटा देखा या अय्यूब. And the Lord says, come Satan, see my son Job. घमंड नहीं कर रहा प्रभु. Isn't the Lord proud of him? ऐसा है कहीं? Have you ever seen a man like him? तो ये हमारे अपने जीवन पे, क्योंकि हम इस समय इस शरीर से कुछ कमा सकते हैं और गंवा भी सकते हैं. आत्मा का तो बात हो गया हमारा. This is in our flesh. We can earn it or we can burn it. But the spirit has already been saved. उसके वरदान से, उसके अनुग्रह से, उसकी गिफ्ट से मुफ्त में मिल गया है. The salvation that we have got has got it as a gift from God, free of cost. अब इस शरीर से या तो हम कमा सकते हैं, गंवा सकते हैं. Now we can either earn through this flesh or burn through this flesh. हाँ, यहीं पर. Only in this life. देखिए, सारा संसार जो है अब ये दफन होने वाला है, यही संसार में ही दफन होने वाला है. The whole world will be buried in the world. हाँ, मगर जो प्रभु के लोग हैं, but the people of God, bought with his blood, who are bought with his blood, वो स्वर्ग जाके हालेलुया चिल्लाएंगे, बड़ी भीड़. They will go to heaven and cry hallelujah. हाँ, तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हम जी उठने की सामर्थ पाते हैं, when we receive the power of the Holy Spirit, मैं डरपोक आदमी हूँ, सच बता. For example, I am a coward. मगर मैंने ऐसे काम कभी कर डाले जो मैं भी सोचता हूँ ये करे कैसे. I am a very fearful man, but the things sometimes I have done, I find amazingly how have I done it. हाँ, वो डरपोक आदमी जो बंद करे बैठे थे, वो ऐसे कैसे बन गए. Though fearful people sitting behind closed doors, how did they become so fearless? जैसे उनमें जी उठने वाली सामर्थ आई, as soon as they got the power of resurrection, वो डर चला गया. the fear was gone. हाँ, जी उठने वाली सामर्थ ने डर को बाहर कर दिया. The power of resurrection took away the fear in their heart. हमें नहीं मालूम लहू कैसे काम करता, हमें नहीं मालूम ये जी उठने वाली सामर्थ कैसे काम करता. We don't know how the blood works. We don't know how the power of resurrection works. फिर आदमी दर्शनों में जीने लगता है, दर्शन में जीने लगता है. Then a man starts living in visions. हाँ, वचन को पढ़ना कोई बोझ नहीं, परेशानी नहीं, आनंद का कारण बन जाता है. Then the reading of the word is not a chore, but it is a pleasure. आप
हद से ज्यादा कई दीवानगी हो जाए, आपको क्या लगेगा ये वचन क्या चीज है? You will be so passionate. What amazing, how amazing the word is. आप एक वचन के अद्भुत आनंद में जीने लगोगे You'll start living in a great joy of the word of God. और वो वास्तविक बदलाव आपके जीवन में लाएगा। And that will bring true transformation in your life. हाँ, देखिए दर्शन में जीने लगते हैं, डर भाग जाता है उनके अंदर, उनका जीवन बदलने लगता है, उनके दर्शन, उनको नए दर्शन मिलने लगते हैं, वो बिट बाय बिट आगे बढ़ते हैं और वो आनंद में जीने लगते हैं। They start living in visions. Their life starts getting transformed. They live in great joy. हाँ, मैं जैसे हम कहते हैं प्रभु तेरे लहू की सामर्थ काम करे, प्रभु तेरे जी उठने वाली सामर्थ मुझ पर काम। So when we say, Lord, let your blood work in me, then we say, Lord, your power of resurrection work in me. प्रभु उनके साथ था, मगर जब तक जी उठने वाली सामर्थ नहीं मिली वो कुछ नहीं कर सके। The Lord was with them, but until the power of resurrection worked in their lives, they could not do anything. पौल एक प्रार्थना करता है फिलिपियों 3:10 में। Philippians 3:10, Paul prays one prayer. पढ़ दीजिएगा, टाइम मेरा। Philippians chapter 3 and verse 10. फिलिपियों 3:10 जी भाई, क्यों ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ भाई उसको बोलो जी उठने की सामर्थ को, वही मतलब है। हाँ, मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings, becoming like him in his death. हाँ, उसकी क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ वास करती है। In his cross, the power of God rests in him. हाँ, प्रियो, जिस विश्वासी के जिसका विश्वासी का विश्वास जी उठने वाली विश्वास की चट्टान पर नहीं बना, The believer whose faith is not standing on the power of Christ's resurrection, हाँ, इस चट्टान पे नहीं खड़ा, if it is not standing on that rock, तो फिर उसका विश्वास ज्ञान के रेत पर बना है। then his faith is standing on the sand of knowledge. हाँ, ज्ञान पर बना है। It's standing on knowledge. जब आप प्रचार करते हैं तो क्या बताते हैं प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसी समय वो आपको When you preach, do you preach the Lord Jesus died, he was buried and he rose again? या शर्म आती है आपको? Are you ashamed to tell that? या छिपा जाते हैं आप? Or you hide it? या फिर तरकीब से बात करते हैं? Or you speak with lot of trickery? जो इससे लजाएगा One who will be वो प्रभु से लजाएगा। the one who will be ashamed of this, the Lord will be ashamed of him. हाँ, रोज प्रभु अपने जी उठने वाली सामर्थ मुझ में डाल। Lord, let pour out your power of resurrection in my body every day. आप सचमुच में डर से बाहर आने लगे। You will come out of fear. हाँ, डर से बाहर आए, आप बड़े-बड़े रिस्क ले जाएं। You will take great risks in your life. और जो नहीं रिस्क लेता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता मुझसे। And the one who doesn't take risks cannot move forward. और ये प्रभु सिर्फ जी उठने वाली सामर्थ्य देती है। And this only the power of resurrection can do. हाँ, और प्रियो, कभी मत छिपाओ इस बात के लिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Never hide from this truth. The Lord Jesus died, he was buried and he rose again. ये बुनियाद है हमारे विश्वास की। This is the foundation of our faith. वरना हमारा सारा विश्वास झूठ में बदल जाए। Otherwise, all our faith will turn into a lie. और मांगो प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर जी उठने वाली सामर्थ। And ask the Lord, Lord, put the power of resurrection in me. हाँ, यही नहीं कि प्रभु तेरे लहू की सामर्थ, तेरे जी Not उठने की सामर्थ। only the power of your blood, but the power of your resurrection. और जब आप इसका अनुभव करेंगे, आप बदलता हुआ जीवन देखेंगे। And when you will see that happening, you'll see your life getting transformed. 3.5 साल में कुछ नहीं बदला, चेलों में विशेष कुछ ज्यादा नहीं बदला। In those 3.5 years, nothing special changed in the lives of the believer. कोई बड़ा बनने की, मगर जैसे जी उठने की सामर्थ आई, सब कुछ बदल। But as soon as the power of resurrection came, everything changed. प्रभु दया करे। May the Lord have mercy. जितना आप इसका प्रचार करेंगे, The more you preach about it, उतने सामर्थ्य होते जाए। the more you powerful you will become. जितना मांगेंगे इसे, उतना The more पाएंगे you will claim it, you will get it. और उतने बदलते जाए। And you will be changed.
और फिर प्रभु आपको बिट बाय बिट पाप पर विजय देना शुरू करें। Then the Lord will start giving you victory आपके over शरीर- sin bit by bit in your flesh. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. Come, let us